একুশের মঞ্চ থেকে কি বক্তব্য পেশ করেছেন সেদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ ফের আজকের এই মঞ্চ থেকে বাংলা অস্মিতায় বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বাংলা ভাষার উপর বিরাট সন্ত্রাস চলছে, তোপ দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসসালামু আলাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, जो सीएम हैं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, उनकी तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। उन्होंने एक किस्म से बगावत कर दी है हिंदुस्तान के साथ, और ये जो तहरीक है, ये जो मूवमेंट है, अब इसका आगाज हो चुका है। और जो एक ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ मैं समझता हूँ एक पहला बड़ा कदम है। और ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो मिलकर, जो अंत भक्त मोदी भक्त कहते थे कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ममता बनर्जी ने कहा है इस बार, तो भाई उन्होंने तबले जंग बजा दिया है, यानी उन्होंने एक किस्म से वार का ऐलान कर दिया है मोदी के साथ। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप हमें इसी तरह बंगला बोलने के ऊपर हमें थर्ड क्लास सिटीजन समझेंगे, हमें बंगला नहीं बोलने दिया जाएगा, अगर हम बंगला बोलेंगे तो हमें कहा जाएगा कि भाई ये तो बांग्लादेशी हैं, तो फिर हम बांग्लादेशी ही बनकर दिखाएंगे, हम बांग्लादेश के साथ मिलकर आपके विरोधी होंगे, आपके खिलाफ हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, बड़ा मैं समझता हूं कि एक थ्रेट किया है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को। और 207 में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से 1952 के अंदर उर्दू के ऊपर एक तहरीक शुरू हुई थी, उसी तरह वो कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में उसी तरह एक तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा, यानी बांग्ला लैंग्वेज को लेकर। अगर मोदी सरकार इसी तरह जबर जुल्म जारी रखेगी हमारे ऊपर, यानी वेस्ट बंगाल के ऊपर, उनको मतलब ऐसा समझेगी जैसे ये बांग्लादेशी हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के आम शहरी नहीं है, तो इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है किस तरह से बड़ी बहादुरी का, मैं कहता हूं कि बड़ी वो कहते हैं ना, ब्रेवरी के साथ इसके ऊपर स्टेटमेंट देना कोई आसान काम नहीं है। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশের মঞ্চ থেকে কি বক্তব্য পেশ করেছেন সেদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ ফের আজকের এই মঞ্চ থেকে বাংলা অস্মিতায় বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বাংলা ভাষার উপর বিরাট সন্ত্রাস চলছে, তোপ দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বিদ্বেষের অভিযোগ তুলছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। একুশের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা ভাষায় নাকি কথা বলা যাবে না, কে মাছ খাবে, কে মাংস খাবে, কে ডিম খাবে ওরা ঠিক করে দেবে। বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস চলছে কেন, এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন একুশের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যারা স্কিল ডেকে নিয়ে যান, তারা চলে আসলে আপনাদের কাজ চলবে না। আর আমার এখানেও তো 1.5 কোটি ভাই বোনেরা আছেন যারা বিভিন্ন রাজ্যের, কই তাদের তো কোনো অসুবিধা হয় না, তাহলে আপনারা কেন বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস করবেন? আমরা এর জবাব চাই, জবাব দিতে হবে। দরকার হলে আবার ভাষা আন্দোলন হবে। দেখতে চাই কত সাহস আছে আপনার, কত জেল আছে, কত কাস্টডি আছে, কত डिटेंशन कैंप আছে। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोचता है बांग्ला भाषा में बात करने से आप डर जाता है। শুনছিলেন একুশের মঞ্চ থেকে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি যে বিদ্বেষ, সেই বিদ্বেষের কথা বলছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি বাংলা ভাষায় কথা বললে পরে ধরে ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বাংলায় এসব আর চলবে না, কারণ এই মঞ্চ থেকে আবারও ভাষা আন্দোলনে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনাবো তার বক্তব্য। আর এবার ইলেকশনের আগে এই দেখুন প্রথম সার্কুলার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার, এটা আমাদের রাজ্যে পাঠায়নি, বিজেপি রাজ্যগুলোকে পাঠিয়েছে, যে 101 মাসের জন্য
যাকেই সন্দেহ হবে 1 মাস জেলে আটকে রাখতে পারবে, ডিটেনশন ক্যাম্প করে এবং হোল্ডিং ক্যাম্প করে। এটা হচ্ছে তার নোটিফিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2রা মে 25 তারিখে পাঠিয়েছিল, যার জন্য আজকে 1000-এর ওপর লোক তাদের কাউকে বাংলাদেশে নিয়ে গেছে, কাউকে রাজস্থানের জেলে ঢোকানো হয়েছে, কাউকে उत्तरप्रदेशे, काउके छत्तीसगढ़े। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी ये बात कर रहा है कि मोदी जी ने ये जो नफरत थी और इस नफरत की जो आग है इस हद तक भड़क चुकी है कि अब जो वेस्ट बंगाल के शहरी हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो अब नहीं संभल रहे। ना सिर्फ वहां की जो जनता है वो, बल्कि वहां की जो सरकार है ममता बनर्जी, उनकी तरफ से भी एक सख्त स्टेटमेंट सामने आ चुका है। वो भी अपनी आवाम के साथ खड़ी हो चुकी है और मोदी के खिलाफ उन्होंने वार में कूदने का ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल में ये मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि आरएसएस के लिए, हिंदुत्व की सोच और अप्रोच वाले लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और फिर साथ ही वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल, आप देखें ये तहरीक जब शुरू होगी तो वो कहेंगे कि हम भाई बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं। हम वो देखें जो ग्रेटर बांग्लादेश का एक ख्वाब था वो हकीकत का रूप धारता हुआ दोस्तों सबको नजर आ रहा है, और ऐसा होता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। कम से कम आपने भी बताना है दोस्तों कि किस तरह से जो वेस्ट बंगाल के शहरी हैं वो तंग आ चुके हैं खुद मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से। यानी वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको समझा ही नहीं जाता कि ये बांग्लादेशी हैं, उनको समझा ही नहीं जाता कि ये आम हिंदुस्तानी है, बल्कि ये समझा जाता है सॉरी कि ये बांग्लादेशी हैं। ये दोस्तों इस वक्त हालात हो चुके हैं वहां के, और अख हार के बेचारी ये जो ममता बनर्जी है, सीएम है, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट उनको देना पड़ा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।